इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ है। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए हैं और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है। बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर बड़े अटैक से जुड़ी हुई अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए हैं। भीड़ ने जोर जोर से ये नारे लगाए हैं, चोर चोर, और इसके बाद उन पर अंडा फेंका गया है। भीड़ ने अभिषेक को थप्पड़ भी मारा है। पहले अभिषेक बनर्जी का विरोध हुआ, फिर हमला हुआ। भीड़ ने जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त अभी हाल फिलहाल में जिस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद टीएमसी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और एक बड़ा चेहरा टीएमसी का देखिए अभिषेक बनर्जी सब ছিড়ে দিয়েছে। পুলিশ নেই। আমি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলবো যে এই প্রশ্নগুলোই আপনাদের তোলা উচিত। আমি এখন যেভাবে এসছি আমি একইভাবে বেরিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি হয়তো বেরিয়ে গেলাম, এই যে সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মা তার উপর তো চড়াও হবে। এই ছেলেগুলো, এই বখাটে ছেলেগুলো যাদের পেটে ঘুষি মারলে কখ কখ বেরোবে না, আমাকে বাইরে থেকে স্লোগান দিচ্ছে চোর। আর বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নির্লজ্জ দোকান কাটার মতো হাত বার করে টিভির পর্দায় 5 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গেছে। বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে টিভির পর্দায় আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর এইভাবে নির্লজ্জভাবে কেউ টাকা নিতে দেখেনি। একমাত্র এই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে যিনি চুরি জচ্চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, যার মাথার উপর ইডি সিবিআই কেস ঘুরছে। Sir, we have seen that you also attacked during visit. You are also attacked. No CAPF sir there. Sir, what's Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। Sir, will you move to court, sir? Sir, will I will definitely move to court. Sir, because the law and order আমি শিফট situation we are করছি। seeing over here, sir, will you move to court because দাঁড়া, আমি সব বলে দিয়েছি, পরে বলছি, আগে আমাদের প্রশাসনের সাথে কথা বলতে দিন। এই এসপিকে ফোন করো, এসপিকে বা আইসিকে ফোন করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে রাখো, স্ক্রিনশট রেখে দাও। এই পুরো ভিডিওগ্রাফির পরেও যেখানে সংবাদ মাধ্যমে টিভির ক্যামেরায় সব ধরা পড়েছে, তারপর প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে নেই। আর যতক্ষণ না এসে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমি এখান ছেড়ে যাব না। রাত্রির 12টা বাজলেও আমি এখানে থাকবো। দেখি এদের কত ক্ষমতা। আমি আপনাদের একা ছেড়ে যাবো, আমি চলে গেলে আমি ছেড়ে যাবো। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है और इस विरोध के दरमियान चोर चोर के नारे लगे हैं, उन्हें थप्पड़ से मारा गया है, उन पर अंडा फेंका गया है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने सीधे तौर पर मौजूदा बीजेपी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल भी उठाए हैं। কেন গণতান্ত্রিক দেশ, গণতান্ত্রিক সমাজ, ডবল ইঞ্জিন সরকার, এত ভয় কেন? যদি মানুষের ক্ষমতায় আসেন তাহলে এত ভয় কিসের? মানুষের রায় ক্ষমতায় আসেন, এত ভয় কিসের? बंगाल
হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো। এই কে আছে বলতো, হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে। फोन करो ना तुल्ले व्हाट्सएप। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सोनारपुर से है जहां पर अभिषेक बनर्जी जो सांसद है टीएमसी के, उन पर अटैक हुआ है, उन पर अंडा फेंका गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए हैं, चोर चोर के नारे उनके वहां पर जब वो गुजर रहे थे तो लगाए गए हैं। और इस बीच हम सीधे रुक कर लेते हैं, रवि दत्ता हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि, आखिर हुआ क्या था, वो किस कार्यक्रम के लिए वहां पर पहुंचे थे और ये कितनी देर पहले की घटना है? देखिए, अभिषेक बनर्जी आज सोनारपुर पहुंचे थे, उसका बाद उनका बेलेघाटा का एक कार्यक्रम था। चुनाव के बाद पहली बार अभिषेक बनर्जी रास्ते में निकल रहे थे, क्योंकि सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर जो हमला हुआ था, और बेलेघाटा में जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी मौत हुई थी उनके घर अभिषेक बनर्जी को जाना था। लेकिन अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचने के बाद, सोनारपुर में वहां पे पहुंचने के बाद उन पर अंडा फेंका गया, उनको धक्का मुक्की उनके साथ हुई, उनको असॉल्ट किया गया। और इसके बारे में अभिषेक बनर्जी साफ साफ कह रहा है, मैं इसको लेकर कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार नया है, हम लोग अगर दोषी हैं तो हमको वहाँ से हटा दिया गया है, अब नया सरकार आया है, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ है? एक पॉलिटिकल लीडर को अगर ऐसा हैकल किया जाता है तो इसके चलते मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं तब तक मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानव जी, इस वक्त क्या जानकारी टीएमसी को है कि वो किस कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, हुआ क्या था वहां पर उनके साथ? देखिए, हमारे काफी कार्यकर्ताओं को मारा गया है। बेलेघाटा में पटनायक परिवार में जो शोक है उसको साझा करने के लिए, उस शोक में परिवार को मिलने के लिए हमारे नेता अभिषेक बनर्जी पहुंचे। देखिए, ये चलित रहा है बंगाल में, देश में भाजपा का ये प्रमाणित हो रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज नेता जो इतने बड़ी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके से आक्रमण किया जा रहा है तो हमारे नॉर्मल मामूली कार्यकर्ताओं, हमारी महिलाओं, हमारे छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? ये सरकार तो नई सरकार आ चुकी है, उनको अच्छे दिन का वादा से लेके आज जब वो बताते हैं कि परिवर्तन सरकार उनको चाहिए, तो ये जुमला, ये झूठ, ये प्रमाणित है। ये पूरे देश को देखना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। और बीजेपी के लोग इसी तरीके से दुराचार पूरे देश में उन्होंने करा है और ये आगे भी करेंगे। मानव जायसवाल जी, वो तो कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है इस घटना के जरिए, और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो। तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भाजपा करवा रही है, भाजपा ने हमारे लोगों को मरवाया है। आज जिसके बेलेघाटा में जिस पटनायक परिवार से जो हमारे नेता मिलने गए हैं, वो कौन है? वो क्या जीवित है? एक युवा व्यक्ति, एक बच्चे का बाप को आप लोगों ने मार डाला, और आप बोलना चाहते कि कौन किया, क्या किया, किसने किया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपको दिख रहा है कि भाई इतनी प्रॉपर्टी है, फलाने ढिकाने लोग मारे गए हैं, उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे। तो मानव जी, किस आशा से आप एक सरकार? मानव जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस बीच लगातार टीएमसी की तरफ से एक स्वर में कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हमला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। किस तरह से उन पर अटैक किया गया, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन पर अंडे फेंके गए, चोर चोर के नारे लगाए गए। वो हिंसा पीड़ित परिवार से मिलने गए थे अभिषेक बनर्जी, और इस दरमियान ये हादसा उनके साथ हुआ है। इसको लेकर बहुत ज्यादा अभिषेक बनर्जी गुस्से में है और वो सीधे कह रहे हैं कि वो कोर्ट मूव करेंगे। रवि, फिलहाल और क्या डिटेल्स इस हमले से जुड़े हुए? वो कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया, अंडा फेंका, थप्पड़ मारे और चोर चोर के नारे लगाए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है, जितने सारे लोग वहाँ पे जुटे थे वो बीजेपी के लोग थे और वहाँ पे लोकल लोग थे। अभिषेक बनर्जी जब पहुँचे हम लोग देख रहे थे, उनको कॉर्डन करके कुछ लोग उनको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सामने कुछ लोग उनको चोर चोर की नारे लगाए, अंडे फेंके, उनको थप्पड़ मारे। इसके बावजूद भी अभिषेक बनर्जी गए, उन परिवार से मिले। उसके बाद वो वहाँ से निकल के बेलेघाटा गए। बेलेघाटा में कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक है, वहाँ पे एक व्यक्ति का मौत हुआ था। इन चुनाव के अगले दिन ही उनके परिवार से मिले। उसके बाद कालीघाट पहुंचे, कालीघाट में अपना रेसिडेंस में वहां पे पहुंचे और अभिषेक बनर्जी ने वहां पे साफ कहा, मेरे घर में सीआईडी आए तो क्या हुआ, मैं ईडी और सीबीआई को झेल चुका हूं, मैं किसी का सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। लेकिन ये जो मामला दिखाई दिया सोनारपुर में, इससे साफ हो जाती है कि अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद पहली बार निकलने के बाद उनके ऊपर जो गुस्सा है लोगों की,
वो टूट पड़ी, जो कि आखिरकार गुस्सा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है। और वही लोग हैं जिनको शायद परिसेवा नहीं मिला या तो जिनको बार बार पीड़ित होना पड़ा तृणमूल कांग्रेस के समय पे, वही लोग आज यहाँ पे आक्रमण लेकिन रवि, एक बात तो सही है ना कि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो टीएमसी के सांसद हैं, अगर उन पर अटैक हो रहा है वो भी ऐसे दरमियान जब उनके साथ सुरक्षा भी है, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, सोनारघाट की ये तस्वीरें, जहां पर ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के पीछे बीजेपी, अभिषेक बनर्जी इस बात को कह रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब अभिषेक बनर्जी सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, उन पर हमला होता है। और उसके बाद देखिए जब वो जा रहे हैं यहाँ पर, जिस जगह वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो हिंसा पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, जिनके घर में मौत हुई है, उस परिवार से मुलाकात करने गए और उसके बाद उन पर यह अटैक अंजाम दिया गया है। इस हमले में उन्हें थप्पड़ मारा गया है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए हैं और उन पर अंडा फेंका गया है। इस दरमियान जब वो वहाँ जा रहे थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी रुके नहीं, वो वहाँ गए, हिंसा पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और वापस लौटे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट मूव करेंगे। और ये देखिए, सुरक्षा कर्मियों के बीच उन पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है और इस दरमियान बहुत ज्यादा अफरा तफरी का मंजर वहां पर नजर आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में हिंसा चरित्र नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से जब सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसको लेकर टीएमसी एक बड़ा सवाल उठाने की कोशिश कर रही है। सुकांता मजूमदार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता। सुकांता जी, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के शासन को लेकर आप कोसते रहे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ भी तो वैसा ही हो रहा है, जिसको लेकर आप बड़े सवाल उठाते रहे हैं। ये कौन है लोग जो इस तरह से सुरक्षा कर्मियों के बीच राष्ट्रीय महासचिव टीएमसी के, सांसद टीएमसी के, उन पर अटैक कर देते हैं? देखिए, पहली बात तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बीजेपी इस तरीके की हमले की कड़ी निंदा करती है। सख्त से सख्त पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करे, ये मांग रखती है। हम मानते हैं डेमोक्रेसी में किसी के ऊपर इस तरीके की हमला जायज नहीं है। विरोध हो सकता है, पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, ऑपोजिशन पार्टी के साथ, सरकार में रहने वाले पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकल विरोध हो सकता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक वे से होनी चाहिए। इस तरीके की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन सुकांता जी, ये जो अटैक हुआ है वो तो हिंसा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जाहिर तौर पर ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो सवाल उठेंगे। वो कोई आम इंसान नहीं है, आम इंसान के साथ अगर घटना होती है तो आप ये कहते हैं कि कहां तक पुलिस वहां पर उनको गार्ड करेगी, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव एक पार्टी के, सांसद एक पार्टी के, उनके साथ इस तरह की घटना होना, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस पहले से ही, आपने देखा इस तरह की घटना पहले से, जब हम ऑपोजिशन में थे बहुत सारी घटनाएं घटी पश्चिम बंगाल की पुलिस के उपस्थिति में। तो पश्चिम बंगाल पुलिस अभी बीजेपी की सरकार के अंडर आई है ना, बिल्कुल, थोड़ा समय जाने दीजिए। मुझे लगता है कि अभी भी वो पुराने तौर तरीके से चल रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि किसी भी तरीके की वायलेंस हमें एक्सेप्ट नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसको स्पष्ट किया है। हमने तृणमूल की पार्टी ऑफिस कभी अपने कुछ लोगों ने जो जब उसको हड़पने की कोशिश की, हमने उस पर भी बंद कर दी और उन लोगों को अरेस्ट करने की व्यवस्था की है। बीजेपी के समय लॉ एंड ऑर्डर उमदा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का काम चल रहा है और हम इस तरीके की घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं करते और इसको चलने भी नहीं देंगे, इस तरह की घटना होने नहीं देंगे। जी, लेकिन सबसे पहला जो रिएक्शन है वो बीजेपी की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर क्या है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसे माना जाए? हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह की घटना घटनी नहीं चाहिए, हम मानते हैं और आगे से नहीं होगा, इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्न करेगी। पर वो कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, जान से मारना चाहते थे वो लोग जो अटैक करने आए थे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि तृणमूल कांग्रेस के समय जब वो पावर में थे, यही यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर थे उस इलाके में, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत यातनाएं दी। उनका कोई रोष हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इस तरीके से रोष को व्यक्त ना करे, धैर्य रखे, शांति बनाए रखे। पुलिस उसका काम करेगी, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगी। जो तृणमूल के गुंडे हैं, जिन्होंने लोगों से पैसा लेके फ्लैट नहीं दिया, पैसा ले लिया, फ्लैट नहीं दिया, किसी की जमीन हड़प ली,
किसी की नौकरी खत्म कर दी, ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटी है उस समय। उसका आक्रोश लोगों में है, लेकिन मैं जनता से ही अपील करूंगा कि शांति बनाए रखे, लीगल पद्धति से उसकी जांच होगी और उसमें एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब आप बार बार ये आरोप लगाते थे कि टीएमसी की सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अब बीजेपी की सरकार में भी इस तरह के अटैक अगर पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं तो फिर बदला क्या है? देखिए, बीजेपी की सरकार अभी अभी आई है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा समय दीजिए, आपको ही पता चल जाएगा बदल क्या हुआ है, क्या बदला है। सुकांता जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी सीधे तौर पर इस हमले की निंदा करती है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की आगे दोबारा इस तरह का अटैक नहीं होगा। रवि दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, इस अटैक को लेकर और क्या डिटेल आई है और टीएमसी की तरफ से और क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जैसे कि अभिषेक बनर्जी ने बताया कि ये उनके ऊपर हमला था और जो हमला का निंदा तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं और पूरी बात को देखते हुए अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। लेकिन हाल ही में उनका जो सिक्योरिटी है, हम लोग ने देखा था, कोलकाता पुलिस और डायरेक्टर सिक्योरिटी ने उनका घर से उनका जो सिक्योरिटी है, जो काफिला लेके चलते थे लंबा, उसको छोटा कर दिया। बस उनका एमपी के तौर पे उनका जो सिक्योरिटी है वो वहाँ पे है। अब इसको लेके कोर्ट में मामला होगा तो अभिषेक बनर्जी का जो सिक्योरिटी है उसको लेके भी सवाल उठेंगे। अगर इसके पहले भी अभिषेक बनर्जी को, जब तृणमूल के शासन थे तब भी अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारा गया था, उसके बाद उनका सिक्योरिटी बड़ी थी। लेकिन अब जब सरकार में नहीं है, उनका सिक्योरिटी हटा लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, अब ये मामला कोर्ट पे जाएंगे और उसका बाद तृणमूल कांग्रेस उनका सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे और देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे उनका सिक्योरिटी मिले। क्योंकि आज जो आक्रमण हुआ है, बार बार अगर ऐसा आक्रमण उनके ऊपर होता रहा तो एमपी के तौर पे उनका जान को नुकसान पहुंच सकती है, उनका जान को खतरा है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस मान के चल रही है। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये घटना कितने बजे की हुई, कितने बजे ये घटनाक्रम पूरा हुआ और उस दरमियान अभी तक क्या अपडेट मिला है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है? देखिए, मामला तब का है, करीब 1:30-2 बजे का मामला है। अभिषेक बनर्जी वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद वो वहाँ से निकल के बागुईहाटी जो है वहाँ पे आए थे, बेलेघाटा, जो कि कुणाल घोष की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तृणमूल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो। लेकिन सोनारपुर में इस बार जो है रूपा गांगुली ने वहाँ पे जीत हासिल की है और वो बीजेपी का एमएलए भी है। अब वहाँ पे जो लोग ये आक्रमण किए थे वो लोग कौन थे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन पुलिस हर वो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो ये पूरा मामला को अंजाम दिया है, क्योंकि विजुअल्स है उनके। और अभिषेक बनर्जी ये पूरा मामला को लेके कोर्ट तक पहुँचेंगे, क्योंकि पहले भी उनका जो सिक्योरिटी है, उनके ऊपर जो FIR हुए हैं भड़काऊ भाषण देने के लिए, वो कोर्ट में वैसे ही पेंडिंग है। तो इसके साथ वो मामला जुड़ेगी और भड़काऊ कौन भाषण दे रहा था और किसका असर कैसे हुआ, ये अभी देखने वाली बात है। और उसके चलते अभिषेक बनर्जी जो है कोर्ट से अपना जो सिक्योरिटी है उसके बारे में मांग किया जाएगा ताकि उसको सख्त पुख्त किया जाए। रवि, जैसा आप बता रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर आगे बात करेंगे कि कैसे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को कम किया गया है, इसके पीछे क्या राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई, इस पर आगे डिटेल आपसे लूंगी। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं इस अटैक के बाद अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा है। জামা, প্যান্ট, কাপড়, জামা, মহিলাদের জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। না, আমি দেখা করতে এসেছিলাম, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি পরিবারের বৃদ্ধ বাবা মাকে ছেড়ে যেতে পারবো না। কিচ্ছু নেই এবং আমার কাছে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের কমিউনিকেশনের স্ক্রিনশট রয়েছে। দেখুন, এখানে মিডিয়া রয়েছেন, তাও চাল ভাঙার চেষ্টা, ঘর ভাঙার চেষ্টা, দেওয়াল প্রায় ভেঙে দেয়, জানলা দরজা ভেঙে দেয়। আমি আমার কাছে সব রেকর্ড রেখে দিয়েছি। পুরো ঘটনাটা ভিডিওগ্রাফি হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জেলা পুলিশ সুপার, আইসি সবাইকে আগে থেকে অ্যালার্ট করা হয়েছে যে এখানে কিছু বহিরাগত লোকেরা জমায়েত করেছে, আপনারা ফোর্স পাঠান, ব্যবস্থা নিন। একজন পুলিশের প্রতিনিধি নেই, একজন। আমরা ভয় পাওয়ার লোক নই। সিপিএমের 34 বছরের অপশাসনের কাছে তৃণমূলের কর্মীরা মাথা নত করেনি। বিজেপি যদি ভাবে ধমকে চমকে আমরা ঘরে ঢুকে যাব, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।
तो अभिषेक बनर्जी का आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट जरूर मूव करेंगे, लेकिन डेरेक ओब्रायन का वो पोस्ट भी आपको बता देते हैं जो उन्होंने अभी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है टीएमसी, उनके नेता को उस वक्त उन पर अटैक किया जाता है जब वो उस परिवार से मिलने जाते हैं जहां पर हिंसा के दरमियान उनकी हत्या हुई है, उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। और ऐसे में पुलिस कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डेरेक ओब्रायन बड़ा सवाल रवि दत्ता उठाते नजर आ रहे हैं। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बताएं। रवि, टीएमसी के सभी नेता एक स्वर में ये कह रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारी है बीजेपी की सरकार की पश्चिम बंगाल में? देखिए, अभिषेक बनर्जी ने अपना वीडियो में साफ साफ कहा है कि पूरा मामला का वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। जब वो परिवार के साथ बात कर रहे थे तब वो घर का दरवाज़ा, उसका जो टेम्पोररी छत है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। और जैसे अभिषेक बनर्जी निकल रहे हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उनका शर्ट का बटन जो है वो खुला हुआ है, हेलमेट पहन के वो निकल रहे हैं, क्रिकेट की हेलमेट, ताकि उनका सर को चोट ना लगे। इसका पहले अभिषेक बनर्जी को एक एक्सीडेंट में बाएं आंख में उनका बहुत गंभीर चोट आया था, जिसके चलते बार बार उनको यूएसए जाना पड़ा था ताकि उनको फिर से चोट ना लगे। और जिसके पहले, पूरा घटना के पहले जिला का जो एसपी है, पुलिस है, सबको वहाँ पे बोल के रखे थे, ऐसा अभिषेक बनर्जी कह रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का ये आरोप है, ये सब इंटीमेशन के बावजूद भी पुलिस का एक अधिकारी वहाँ पे नहीं था और जो लोग वहाँ पे उनको अटैक किए हैं वो बाहर से आए थे। ये पूरा मामला का रिकॉर्डिंग हुआ है, अलग अलग कैमरा से फीड लिया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, ताकि ये मामला अब कोर्ट में जाए और उसका बाद अभिषेक बनर्जी को जो सिक्योरिटी है उसको लेके यहाँ पे चर्चा हो कोर्ट में। लेकिन आज अभिषेक बनर्जी जिस कदर वहाँ पे पहुँचे थे और उसके ऊपर जिस कदर उनको अटैक किया गया, ये साफ जाहिर होता है कि अभिषेक बनर्जी आज वहाँ पे और कुछ कम लोगों को लेके जाते तो उनको नुकसान पहुंच सकती थी। वैसे उनको थप्पड़ मारा गया, उनका शर्ट टूट गया, उनको अंडा फेंका गया, लेकिन इसके बाद कुछ गंभीर चोट उनको ना लग जाए इसका आशंका था। इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि पूरा मामला वीडियो रिकॉर्ड करके हम कोर्ट तक पहुंचेंगे। जब वो मिलने जा रहे थे, मैं आपको रोक रही हूं एक मिनट, सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। जिस तरह का अंडा फेंका है, ईटा भी मारा है, क्या कहेंगे? आपने सब कुछ देखा है ना, एक सवाल आप 10 बार पूछेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है। आप ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए, हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले।
जी कह रहे हैं कि जोश जज्बा इरादे नहीं झुकने वाले हैं, चाहे जितना जोर लगा लीजिए। इस अटैक को लेकर उन्होंने कहा कि बाकायदा कम्युनिटी हॉल में कुछ लोगों को एकत्रित किया गया, उन्हें पत्थर प्रोवाइड किए गए, उन्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जाए जिससे वो हमला कर पाए। গাড়ি করে একটা কালো রঙের স্করপিও করে আচ্ছা নাম্বার প্লেট আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। মাইকটা অন করে দাও, ঠিক আছে? অন করে রাখো। নাম্বার প্লেট WB06Z WB06Z আরে দাদা আমাকে তো তাই হবে 10 নিচে রাখতে পারছি যে এখানে ব্ল্যাক স্করপিও বিজেপির একজন বিধায়কের দলের মানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সদস্য বা আত্মসহায়ক খাবার সাপ্লাই করেছে কমিউনিটি হলে গুন্ডাদের, সেই ভিডিও আমাদের কাছে আছে। अभिषेक बनर्जी को आप सुन रहे हैं। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि लोग मुझे मारना चाहते थे, मेरी शर्ट फाड़ी गई, मौके पर एक भी पुलिस वाला नहीं था, हेलमेट की वजह से सिर बच गया, ऐसे हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एक पूरी तरह से प्लानिंग थी इस हमले को अंजाम देने में। एक कम्युनिटी हॉल में गुंडों को इकट्ठा किया गया था, जिन्हें वो सब सामान प्रोवाइड किया गया था जिसके जरिए इस अटैक को अंजाम दिया जाए। स्वागत राय टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत जी, आपका भी नाम आ रहा था कि आप पर भी किसी तरह का अटैक हुआ है, जरा डिटेल में बताइए आखिर हुआ क्या था वहां पर? नहीं, हम ये घटना अभिषेक पर जो हमला हुआ इसको निंदा करता हूँ। ये हमला कोई आम जनता नहीं किया है, ये बीजेपी के गुंडा लोग किया है। बीजेपी के नेता लोग इसको पूरा उत्साह दिया है और वो नहीं चाहते हैं कि हम कहीं जाए, लोग पर अत्याचार भी हो, और इसलिए अपना गुंडों को, लफंगा को वो उसका दे रहे हैं। नहीं तो क्या ऐसा हो रहा है? अभिषेक जी को पहले से ही अंदाजा था स्वागत जी कि इस तरह का हमला हो सकता है, जो वो इस तरह से ये क्रिकेट का जो हेलमेट है वो पहन कर निकले हैं, या ये हमला होने के बाद की तस्वीरें हैं? हाँ, क्या क्रिकेट वाला हेलमेट पहनकर अभिषेक बनर्जी निकलते हुए दिख रहे हैं और उस दरमियान उन पर हमला हुआ है, क्या उन्हें पहले से अंदाजा था कि इस तरह का हमला उन पर हो सकता है? बीजेपी तो कर रहे सब, उसको अंदाजा था कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन पुलिस तो बाद में पहुंचा। अभी मैं देख रहा हूं कि पुलिस पहुंचा। टीएमसी अब इस पूरे मामले को कैसे आगे एक्शन मिलेगी? के नेता लोग के उत्साह दे रहे हैं। जी स्वागत जी। अभिषेक बनर्जी स्वागत जी कह रहे हैं कि बाकायदा एक कम्युनिटी हॉल में कुछ गुंडों को इकट्ठा किया गया था जो इस हमले को अंजाम दे। क्या पहले से स्वागत राय जी से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी हॉल में कुछ गुंडों को एकत्रित रखा गया था, उन्हें वो सारा सामान प्रोवाइड किया गया था जिसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए, जब ये हमला हुआ है उस दरमियान अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि एक भी पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था, और वो कह रहे हैं कि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मेरी आंख पर हमला किया गया है, ईंट पत्थर सब कुछ मारा गया है और मेरी आंख की 7 दफे सर्जरी हो चुकी है। जानबूझकर इस तरह से मुझे टारगेट किया, मेरी आंख को निशाना बनाया गया, वो मुझे जान से मारना चाहते थे। साथ ही वो ये बता रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर अभी स्टेटमेंट दिया है जिसे आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारा जुनून जज्बा आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इस तरह के मामलों को, इस तरह के हमले को हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। टीएमसी में गुस्सा है अभिषेक बनर्जी पर, जिस तरह का हमला हुआ है, इस दरमियान उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा सवाल जिसको लेकर टीएमसी उठा रही है, उस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या कहा जाएगा अब उस पश्चिम बंगाल के लिए जिसका हिंसा चरित्र बदलने के लिए बीजेपी को कमान सौंपी गई थी? इसका इंतजार टीएमसी को है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, थप्पड़ और फेंके गए अंडों की तस्वीरें। मीडिया के कैमरों के बीच इस अटैक को अंजाम दिया गया है। दूसरी तस्वीर अभिषेक बनर्जी पर अटैक के बाद जब वो जहां पर गए थे, हिंसा पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, एक ऐसा टीएमसी का कार्यकर्ता जिसकी उम्र बहुत कम थी, उनसे मुलाकात करने गए थे और उसके बाद उन पर इस हमले को अंजाम दिया गया है।
तो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला हुआ है। इस पर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर कवरेज जारी है।